ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 47۔ دس از دا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ گزرتا وقت بہت سے زخموں کو مندمل کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ اپنے اس وقت میں ساتھ دیں۔ شمال بظاہر تو سب سے بات کرتی تھی، لیکن ہادھیر کی موجودگی میں وہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا خود پر حرام سمجھتی تھی۔ ہادھیر بھی اس سے مکمل لاتعلقی برتے ہوئے تھا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، شمال کو ہادھیر کا رویہ مزید الجھاتا جا رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، چاہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب سب کی قسمت ایک دوسرے سے جڑنے والی تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی، لیکن مہندی کی رسم سے پہلے ہادھیر اور حمین کا نکاح شمال اور آزا سے بخیر و عافیت انجام پا چکا تھا۔ نکاح کے بعد سے جیسے حمین کی خوشی دیدنی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے تمام لڑکیوں کو پارلر والی تیار کرنے آ چکی تھی، جبکہ ہادھیر اور ہادی کو مہندی کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر حمین منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے، گلے میں سبز اور پیلے رنگ کی چنری ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں، ہادی اور ہادھی دونوں کو ہینڈسم بنا رہی تھی۔ دونوں اس وقت ہادی کے کمرے میں موجود تیار کھڑے تھے۔ ہادی اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر ہادھیر بیٹھا موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جب حمین اندر داخل ہوا، مہندی کلر کا کرتا پہنے، گلے میں پیلے رنگ کی چنری اوڑھے اور چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے، وہ کمرے میں موجود دونوں نفوس کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ ہو گئے تیار دونوں؟ حمین اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو ہادی نے مسکرا کر اس کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھا۔ ہاں جی بالکل تیار ہے، ہادی اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔ بھائیو قسم سے آپ دونوں بہت ظالم ہیں۔ حمین کی دہائیاں ایک بار پھر سے شروع ہوتے دیکھ کر ہادی نے بمشکل اپنا کہا روکا تھا، جبکہ ہادی نے ڈمپلز کی نمائش بھرپور کی تھی۔ ہانی تمہاری منقوہا کا فیصلہ ہے بھائی، قدر کرو اس کے فیصلے کی۔ بھائیو منقوہا کا فیصلہ نہیں ہے یہ، میں جانتا ہوں وہ تو ہے ہی معصوم، یہ ہمارے ہٹلر باپ اور میری خوشیوں کے دشمن ہاضم شاہ کا فیصلہ ہے۔ حمین منہ بسورتے پہ بولا تو ہادی نے اسے گھورا تھا۔ شرم بھی کسی چیز کا نام ہے ہنی، اور وہ چیز آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس نہیں پائی جاتی۔ حمین کی دوبدو جواب پر ہادھیر کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ فضول کی مت ہانکو، اور چلو اس سے پہلے ڈیڈ یہاں آ کر ہماری کلاس لیں۔ ہادی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا تو حمین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چھیڑا تھا۔ بھائیو ڈیڈ کو تو پتہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بی جے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ہادی ان کی گفتگو کو مکمل مزے سے سن رہا تھا۔ اپنی بکواس کو اپنے منہ میں رکھو ورنہ شادی میں شرکت مشروط کر دوں گا۔ ہادی کی دھمکی پر بھی وہ مسکرایا تھا۔ بی جے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ویسے اور گڑیا بھی۔ حمین موبائل نکال کر جس انداز میں بولا تھا دونوں کا متوجہ ہونا لازمی تھا۔ ہادی نے ایک نظر ہادھیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیسے دیکھا ان کو؟ ہادھیر نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ برو ہولڈ آن، ایک بھائی کی گھوریاں کم تھی جو آپ بھی شروع ہو گئی۔ میں تو اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تھا بی جے کے کمرے میں، لیکن وہ وہاں تھی نہیں کیونکہ وہ موم کے کمرے میں تھی۔ پھر میں نے بی جے اور گڑیا کی پکس بنائی اور یہاں آ گیا۔ حمین کی بات پر دونوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ دکھاؤ پکس۔ ہادھیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا تو حمین نے موبائل جلدی سے اپنے کرتے کے دائیں سائڈ پر بنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ایسے کیسے دکھا دوں بھائی، کوئی ٹیکس ہوتا ہے، کوئی قیمت ہوتی ہے دکھانے کی۔ حمین کی بات پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ رہنے دو، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ ہادی یہ بول کر کمرے سے جانے لگا جب حمین نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ آپ کا کل تک پردہ ہے بھیجے سے، جانتے ہیں نا آپ، تو آج آپ دونوں دلہنیں پردے، میرا مطلب ہے گھونگھٹ میں مہندی کی رسم ادا کریں گی۔ حمین کی بات پر ہادی اور ہادی نے دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ہادی کو ہتھیار ڈالتے دیکھ کر حمین 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ 2 لاکھ روپے۔ حمین کی بات پر ہادی اور ہادی نے اسے دیکھا تھا جو مزے سے ہاتھ پھیلائے ان کے آگے کھڑا تھا۔ ہنی 2 لاکھ، خدا کا خوف کرو، اتنے پیسے کون مانگتے تصویر دکھانے کے؟ ہادی نے دانت پیس کر کہا تھا۔ لیں میں دکھاتا ہوں برو، اور کون دکھائے گا اتنے پیسوں میں؟ ہنی مجھے تمہاری بیٹے کی شکل دیکھنے میں اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ میں 2 لاکھ دوں گا تمہیں اس کے لیے۔ ہادی کی بات پر حمین مسکرایا تھا۔ بھائیو 2 کیا، آپ ابھی 4 لاکھ بھی دیں گے جب میں ویڈیو کال پر آپ کی بات کرواؤں گا۔ ہنی تم جانتے ہو تم ایک نمبر کے واہیات انسان اور سب سے بڑے بلیک میلر ہو۔ ہادی نے اسے گھورا تھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ ہادی بھی اس کی تقلید میں ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ حمین نے ان کے جاتے اپنا موبائل نکالا جہاں پر بی جے کے ساتھ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کال پر تھا، مطلب وہ اپنی اور ان کی گفتگو آئرہ اور شمال تک پہنچا چکا تھا۔ بی جے آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، آزا کو آج رات چھت پر لے کر آنا ہے پلیز۔ حمین موبائل کو کان سے لگا کر بولا تو دوسری طرف سے بنا کسی جواب کی کال بند کر دی گئی تھی۔ ہاں میرا نکاح ہی کروایا تھا نا، اب بھگ تو آپ دونوں بھی۔ حمین تصور میں ہی ہادی اور ہادھیر کے اترے ہوئے چہرے دے کر بولا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مہندی کی رسم شاہ اس کے لان میں اپنی آب و تاب سے جاری تھی۔ حمین کی کہی بات واقعی سچ ہوئی تھی۔ شمال اور آرا کے چہرے کو گھونگھٹ کی اوڑ میں چھپایا ہوا تھا۔ ایک بڑا سا سٹیج جس پر 2 جھولے لگائے تھے،
दाएं तरफ वाले झूले पर हादी बैठा था, जिसके साथ आयरा पीले रंग का लहंगा पहने बैठी थी, जबकि बाएं साइड वाले झूले पर हादीर बैठा मुस्कुरा रहा था, जिसके साथ शुमाइल ऑरेंज कलर के लहंगे में खामोश सी बैठी थी। स्टेज से थोड़े फासले पर हुमैन और आज़ा खड़े थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक हैप्पी कपल हो, लेकिन उनकी लड़ाई की आवाज़ सिर्फ उन दोनों तक ही महदूद थी। हातिब शाह और हासिम शाह अली शाह के साथ बराजमान थे और बिलाल शाह जो एक हफ्ता पहले ही पाकिस्तान वापस आए थे, अब अली शाह के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आसफा और इशाल शाह मुस्कुराकर आमना शाह को कुछ बता रही थी। सभी खुश थे। ये घूंघट क्यों किया हुआ है? हादी की झंझलाई आवाज़ पर आयरा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका था, ताकि आपकी बुरी नजर न लग जाए। आयरा के रिवा पर वो दांत पीस कर रह गया था, लेकिन दिल ही दिल में उससे आज रात बात करने का इरादा कर चुका था। हादीर ने अपने साथ बैठी शुमाल के झुके सर को देखा तो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ मिसेस, इतनी खामोश क्यों हूँ? मुबारकबाद ही दे दो, वही तरक्की हो गई है मेरी। हादीर की गंभीर आवाज़ पर वो घूंघट के अंदर ही अंदर लरस सी गई थी। लबों को सख्ती से बेबस किए वो खुद को भी कुछ गलत बोलने से रोक गई थी। क्या हुआ, जबान कमरे में भूल आई हो? ये शौहर का जवाब देना ही नहीं चाह रही। हादीर ने उसे मजीद उकसाया था। मुझसे बात मत करें प्लीज़। शुमाल की भराई आवाज़ पर हादीर ने झूले को पकड़कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया था और फिर गेट से दाखिल होते अली को देखकर उठा और उसकी जानिब बढ़ गया। मुझे तो ये था तुम आज भी नहीं आओगे। हादीर की खपकी भरी आवाज़ पर वो मुस्कुराया था। आपकी शादी को मिस कैसे कर सकता था? वैसे भी मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, लंदन में अब सब खत्म करके आया हूँ। अली मुस्कुराकर बोला तो हादीर ने हादी को इशारे से अपनी तरफ आने का कहा। हादी भी उठकर उन दोनों की जानिब आ गया। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो? मुझे हाद ने तुम्हारे बारे में बताया था, खुशी हुई तुमसे मिलकर। हादी उसके बगलगीर होते हुए बोला तो अली मुस्कुरा दिया। शुक्रिया सर। तुम पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो गालिबन? हादी के बात पर अली ने हादीर को देखा जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। एक दफ़ा बातों में उसने हादीर को बताया था कि वह पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात थी। अली ने मुस्कुराकर हादी को देखा। सर करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी तालीम इतनी नहीं है कि। ओह कम ऑन यंग मैन, मैं अपने सर से बात करूँगा तुम्हारे बारे में, आर्मी में ज्वाइनिंग के बाद भी तुम पढ़ सकते हो। हादी उसकी बात काट कर संजीदगी से बोला। शुक्रिया सर, मुझे खुशी होगी। इससे पहले हादी को जवाब देता एक नुस्वानी आवाज़ ने उन तीनों को अपनी तरफ मतवजह किया था। अस्सलाम वालेकुम मेजर, कैसे हैं आप? हादी ने जैसी आवाज़ की सिम देखा था वो मुस्कुरा दिया था। हमना ग्रीन कलर की फ्रॉक पहने, शानों पर दुपट्टा फैलाए, लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, लेकिन आप लेट हैं। वो गाड़ी ख़राब हो गई थी फ्लाइट से निकलती हुई, टैक्सी भी मुश्किल से मिली थी। तुम जानते हो मुझे रास्ता भी वाज़ेह नहीं था पता, इसलिए हो गई लेट। हमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो हादी ने पास खड़े अली और हादीर का तारुफ करवाया था। हमना, ये मेरा भाई है हादीर शाह और ये उसका दोस्त अली नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, कैसी हैं आप? हादी, मुझे तुम्हारी दुल्हन से मिलना है, मुझे उससे मिलवाओ। हमने उन दोनों से हालचाल पूछकर पुरजोश थी हादी की तरफ मतवजा हुई थी। हादी ने हैरत से उसकी बेतकल्लुफी देखी थी, जबकि अली तो उसकी मुस्कुराहट में ही खो गया था। हाँ चलो भाई। हादी ये बोलकर आगे बढ़ गया, जबकि हमना भी उसकी तकलीद में उसके पीछे ही चली गई थी। हादी ने अपनी एक नज़र अली को देखा जो बिना पलके झपकाए हमना को आंखें खोले हमना की पुश्त को देख रहा था। अली मुंह तो बंद करो। हादिर की मुस्कुराती आवाज़ पर अली ने जल्दी से मुंह बंद करने की कोशिश की थी। वो थीम कर मुस्कुराते हुए नजरों का रुख मोड़ गया था। हादिर उसके कंधों पर बाजू फैलाए उसे सब घर वालों से मिलवाने के लिए आगे बढ़ गया था। मेहंदी की रस्म बखैर आफियत अंजाम को पहुंची थी। हमना से मिलकर सब घर वालों को अच्छा लगा था। हादी अब उसे दोबारा फ्लैट पर छोड़ने गया था, जो उसने पाकिस्तान आने के बाद उसे 1 माह बाद लेकर दिया था। सब बड़ों को थकावट हो चुकी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरों में आराम की गर्ज से चले गए थे। हादी जैसे ही हमना को वापस छोड़कर घर आया, उसका ध्यान बेसाख्ता आयरा के कमरे की जानिब उठा था। वो मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरकर अपनी निगाहों को इर्द गिर्द दौड़ाने लगा तो सब मेहमान ही तकरीबन सो चुके थे। वो आहिस्ता से कदम उठाते हुए आयरा के कमरे की जानिब चला गया। दरवाज़ा जैसे ही वो खोलने लगा ठटक कर रुका था, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हिफाजती तदाबीर। हादी खुद से बुड़बुड़ाकर किचन की जाने बढ़ा। फ्रिज के ऊपर चाबियों का गुच्छा देकर वो वापस आयरा के कमरे की जाने बढ़ा। 1-2 चाबियां लगाने के बाद तीसरी चाबी पर लॉक खुला था। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर की जाने बढ़ा और मुस्कुराते लहजे में दरवाज़ा दोबारा लॉक करके जैसे ही पलटा दंग रह गया था, क्योंकि सामने बेड पर आयरा की जगह हादी और हुमैन लेटे हंसते हुए उसे देख रहे थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हादी उन दोनों को घूरते हुए बोला, जो पागलों की तरह हंसते हुए उसे मजीद गुस्सा दिला रहे थे। भाइयों, आपको क्या लगता है अंदर बीजे आपका इंतजार कर रही होंगी? हुमैन आंखें मटकाते हुए बोला तो हादी गुस्से से उसकी जाने बढ़ा, जो बेड से छलांग लगाकर दूसरी तरफ उतर चुका था। हाँ भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों को यहाँ छोटे बाबा ने कैद किया, क्योंकि उनको यकीन था कि हम तीनों उनकी बेटियों की नींद हराम करने पहुंच जाएंगे। हादिर के बाद पर वह संजीदगी से उसे देखने लगा। ये सब डैड को यकीनन इस खबीस इंसान ने कहा होगा। हादी ने हुमैन को घूरा था। हाँ भाइयों, कसम ले लें जो मैंने डैड से ऐसा वैसा कुछ कहा हो। वो तो अचानक मुझे भी मेरे कमरे से बाहर निकाल कर वहाँ लॉक लगा चुके थे।
हुमैन के जवाब पर हादी बेड पर बैठा था। डैड को भी पता नहीं क्यों हिटलर बनने का शौक चढ़ा हुआ है। हादी खुद से बड़बड़ाया और जूता उतार कर वहीं लेट गया। हादी ने भी लेट जाने में याफियत जानी, जबकि हुमैन उन दोनों को बेड पर लेटे देकर घूरने लगा। मैं कहाँ जाकर सोने की तैयारी करूँ, ये भी बता दें आप दोनों। हुमैन की आवाज़ पर हादी ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो सामने पड़ा सोफा तुम्हारा मुंतज़िर है हुमैन शाह, अब इसका मजीद इंतजार ना करवाते हुए दफा हो जाए उसके पास। हादी की बात पर हुमैन कड़वे खून पीकर रह गया था, जबकि हादी हल्के से मुस्कुराहट को लबों पर सजाए आंखें बंद करके सुबह का इंतजार करने लगा। वो फैसला कर चुका था। नई जिंदगी की शुरुआत से पहले वो शुमाइल को अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं से आगाह कर देगा, ताकि आने वाली जिंदगी में कोई गिला शिकवा या शिकायत उनके खुशियों पर असरअंदाज ना हो। एक तवील मुसाफत के बाद खुशियों ने शाह हाउस का बसेरा किया था, जो यकीनन दायमी ना सही लेकिन वक्ती तौर पर सबको पुरसकून कर गई थी। एक नई सुबह सबकी मुंतज़िर थी। कभी कभी खुशियों के लिए एक तवील इंतजार करना पड़ता है। इस इंतजार में आजमाइश आ जाए तो सब्र का दामन छोड़ना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं होता। आजमाइश का क्या है, गुजर ही जाती है, लेकिन एक इंसान को हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद गुमान में तभी बदलती है जब उसे इंसानों से बांधा जाता है, लेकिन खुदा से उम्मीद बांधे तो कभी गुमानने में नहीं बदलती। शाह हाउस पर बुरा वक्त आया था, लेकिन रब पर कामिल यकीन ने उन्हें इस बुरे वक्त में निकाल दिया था। खुदा कभी भी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता, इसलिए उससे शिकवा करने की बजाय उम्मीद रखो कि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाएगा। गम का अंधेरा खत्म हुआ तो खुशियों का सवेरा अपने आबोताब से चमका था। शाह हाउस को जगमगाती रोशनियों से सजाया गया था। हर तरफ शादी की गहमा गहमी थी। शुमाइल और आयरा सलून गई थी और राजा भी उनके साथ ही गई थी, जबकि दूसरी तरफ हादी और हादी तैयार हो रहे थे। हातिब शाह हाजिम शाह के हमरा पहले ही होटल में पहुंच चुके थे। अली शाह और बिलाल शाह आमना शाह के साथ होटल के लिए निकल चुके थे। इशाल शाह राजपा शाह ने हादी लोगों के साथ जाना था। सिल्वर कलर की शेरवानी ज़ेबतन किए, काले सिल के बालों को जेल से सेट किए, गंदमी चेहरे पर सजी हल्की सी फ्रेंच कट दाढ़ी, आंखों में चमकती खुशी, लबों पर सजी दिलकश मुस्कुराहट लिए, दाएं हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने, बाएं हाथ से खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते वो आईने में अपने सरापे को देखकर मुस्कुराया था। एकदम उसकी मुस्कुराहट थमी थी। अपने कमरे के बेड ग्राउंड के ऊपर मौजूद अपने माँ बाप की एनलार्ज तस्वीर देखकर वो पलटा था। आज के दिन आपको शिद्दत से याद कर रहा हूँ। आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता मामा बाबा। सबको लगता है आप दोनों नहीं हैं, लेकिन आप जिंदा हैं। मैं जानता हूँ, मेरे दिल में, मेरी धड़कनों में और मेरी बातों में। मिसिंग बोथ ऑफ यू टुडे वेरी बैडली। नम आंखों से बोलते हुए वो रुका था, क्योंकि उसके कंधे पर हाथ रखकर किसी ने शायद उसे तसल्ली दी थी। हाथ हीरे सख्ती से आंखें बंद करके अपने आंसू अपने अंदर उतारे थे। सब कुछ अधूरा है आज के दिन हाथ, क्योंकि आज बड़े पापा को सब याद करेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, हमारे लिए, सबसे बढ़कर शुमाइल के लिए। हादी जो अपना यूनिफॉर्म ज़ेबतन की अपने बैजेस को सीने पर फखर से सजाए, बालों को जेल से सेट किए हादिर के कमरे में आया था। हादिर को खुद से बोलते देखकर बमुश्किल खुद पर कंट्रोल रखते हुए उसे तसल्ली देने लगा था। हादिर पलट कर उसे देखने लगा। आई नो भाई, और मेरी कोशिश होगी सबके चेहरों पर खुशी ही रहे। हादिर मुस्कुराया था, लेकिन उसकी आंखों की नमी हादी की निगाहों से छुप नहीं सकी थी। मुझे सबके साथ तुम्हारी भी मुस्कुराहट चाहिए, और इस मुस्कुराहट में दुख की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। हादी बोलते हुए उसके बखलगीर हुआ था। हादी ने अपना सर इस्पात में हिला दिया था। चलो नीचे, सब इंतजार कर रही हैं। हादी के बोलकर उसे अपने साथ लिए कमरे से निकल गया था। वक्त उन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था। शायद किस्मत भी उन पर मेहरबान थी। जी तो डियर लिसनर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के लास्ट एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।